सामने आई और जिस तरह का दृष्टांत पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको कहीं न कहीं अस्थिर अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है और उस प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है और आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में, उससे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ट्रैप करने का भी कोशिश किया है। हम समझते हैं कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे बिकने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो, निश्चित रूप से दोनों की निंदा होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से शिवसेना के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया और महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो जनता के द्वारा चुन के आई थी उसको गिराने का काम किया गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस कृत्य की पूरे देश में निंदा हो रही है और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मद्देनजर हम लोगों ने आज FIR भी दर्ज कराया हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने। मैं उस विधायक द्वारा की गई कंप्लेंट को पढ़ के सुना देता हूं। टू द ऑफिसर इंचार्ज अरगोरा रांची, आई Anup Singh, MLA of Jharkhand, would like to lodge a complaint regarding offer of ratification being offered to me to topple the present government of JMM and Congress, which came to power with a thumping majority. Shri Irfan Ansari, MLA Jamtara, Shri Rajesh Kachchap, MLA, and Shri Vixal Kongari, MLA, are calling me to Kolkata and offering me money, and they are promising 10 crores per MLA. Shri Irfan Ansari and Rajesh Kachchap wants me to come to Kolkata and then take me to Guwahati, where according to him, he will make me meet Shri Himant Biswa Sharma, who will give me assurance of a definite ministerial berth apart from the money. Irfan Ansari has told me that he has already been promised health ministry in the new government. He also told me that he shall be reaching Kolkata yesterday afternoon. He said that he has already got money transferred to his persons, and once I reach Guwahati and promise it in front of Sri Assam CM Himanta Biswa Sharma, he assured me that Sri Sharma is doing it with the blessing of topple sorts of BJP political party sitting in Delhi. He do not want to be part of his unconstitutional, illegal and downright criminal activity, and hence informing you that we please take action against them who be stationed in Calcutta with token amount and pressuring me to come to Kolkata and accompany them to Guwahati. Since I do not want to be a part of such criminal offence and indulge in such unethical activity which breaks the constitutional structure of the country, would request you to take action as per Section 7C of Prevention of Corruption Act and 120B IPC and bring this kind of criminal activity to a stop, which strikes at the very heart
of the democracy and book the persons as per the provisions of law and law for influencing me for an illegal act in active coalition with others who are operating from behind to topple the present government of Jharkhand with a dangerous design and adopting all sorts of illegal ways by influencing their position being in capacity of public servants. इस बात को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद हमने आदरणीय आलमगीर साहब ने अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी को, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को इस बात से अवगत कराया है और तत्पश्चात सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। हम समझते हैं कि जो ये हुआ है निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और आने वाले समय में आप तमाम मीडिया साथियों से भी आग्रह होगा कि आप जिस तरह से लगातार अपनी बातों को कहते रहते हैं और तरह तरह से सारी चीजों को सामने लाते हैं, इस चीज को भी जरूर लाइएगा कि सिर्फ बिकने वाला ही नहीं, खरीदने वाला कौन कौन है वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। क्योंकि हमने देखा है कि पहले जो महाराष्ट्र सरकार गिराई गई उस पर जो विधायक थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो बिकने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो खरीदने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द दंडित किया जाए। जो लोग इस खरीद बिक्री खरीद फरोख्त में शामिल हैं उन पर हम लोगों ने एफआईआर किया है। निश्चित रूप से कार्रवाई बहुत जल्द होने की हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। अब हमारे आदरणीय विधायक दल के नेता जो लगातार सभी विधायकों से बातचीत करते रहते हैं, बावजूद अभी पिछले दिनों विधायक दल की बैठक हुई थी, 18 विधायक शामिल हुए थे, बावजूद इस तरह की घटना सामने आई है, उस पर प्रकाश डालेंगे।